دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جھیل بھی موجود ہے جس نے کچھ ہی سیکنڈز میں ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی جان لے لی تھی؟ اور کیا آپ اس جھیل کے بارے میں جانتے ہیں جو پرندوں کو منٹوں میں پتھر کا بنا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی انہی خطرناک ترین جھیلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگست 1986 کے آخری دنوں کی بات ہے جب ایک مسافر وسطی افریقی ملک کیمرون کے ایک گاؤں ووم سے دوسرے گاؤں نیوس جا رہا تھا۔ اس روز نیوس کا راستہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ راہ سے گزرتے اس مسافر کی نظر ایک ہرن پر پڑی جو مردہ حالت میں تھا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہاں ایک نہیں بلکہ کئی جانور مرے ہوئے ہیں۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے یہاں آسمانی بجلی گری ہو جس کی وجہ سے ان سب کی جان چلی گئی۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی آبادی میں داخل ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ کسی سے معلوم کیا جائے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہلے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں موجود تمام افراد مردہ ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا دوسرے گھر میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی المناک منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ گھبرا کر اس گھر سے نکلا اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا واپس ووم کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ ووم پہنچا تو تب تک نیوس اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں سے کئی لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ انہیں لگتا ہے جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ فضا میں بہت بدبو پھیل گئی تھی۔ لیکن اصل میں ہوا کیا تھا یہ کسی کو بھی فی الحال معلوم نہیں تھا۔ جلد ہی فرانس اور امریکہ کے سائنسدانوں کا ایک وفد اس واقعے کی تحقیقات کے لیے پہنچ گیا۔ جب لاشوں کا معائنہ کیا گیا تو ان کے جسم پر کسی قسم کے زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ بس یوں تھا کہ جیسے یہ لوگ جہاں تھے، جو کر رہے تھے، وہیں پر فوراً ہی مر گئے۔ ایک عجیب سا منظر تھا۔ خیر، تحقیقاتی ٹیم علاقے کا معائنہ کرنے نکلی، اور جیسے ہی وہ نیوس میں واقع ایک جھیل کے کنارے پہنچے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جھیل کا پانی غیر معمولی طور پر گہرے بھورے رنگ کا ہے۔ انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ یہ نیوس جھیل ہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 21 اگست 1986 کو اس جھیل کے پانی میں ایک انتہائی زہریلی گیس کا اخراج ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گیس نے آس پاس بسنے والے ہزاروں انسانوں اور حیوانوں کی جان لے لی۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ دراصل یہ جھیل نیوس تقریباً 400 سال پہلے ایک آتش فشاں گڑھے میں بنی تھی۔ دوستو، یہ تو شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کریٹر جھیلوں میں عام طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ گیس جھیل کے نیچے آتش فشاں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بنتی ہے، اس لیے عام حالات میں جب جھیل کا پانی حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کی وجہ سے یہ گیس پانی سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جھیل نیوس باقی کریٹر جھیلوں سے مختلف تھی۔ یہ غیر معمولی طور پر ایک ساکن جھیل تھی۔ اس کا پانی ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا تھا، اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کی بجائے یہ جھیل ایک ہائی پریشر اسٹوریج یونٹ کے طور پر ایک لمبے عرصے سے کام کر رہی تھی۔ اس جھیل کا خاموش پانی دراصل اسی زہریلی گیس سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اس بات کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس خوبصورت جھیل کے پانی کی یہ گہری خاموشی حقیقت میں ایک ٹائم بم تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ 21 اگست 1986 کے روز اس سوئی ہوئی جھیل کو کسی نے جگا دیا۔ اس کو جگانے والی چیز کوئی لینڈ سلائڈنگ تھی، کوئی مٹی کا طوطا تھا، یا پھر اس جھیل کے دامن میں کوئی چھوٹا سا آتش فشاں پھٹا تھا۔ ان میں سے جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کا نتیجہ بہت تباہ کن تھا۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ جھیل پھٹ چکی تھی، جسے سائنسی زبان میں لیمنک ایرپشن کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کے پھٹنے سے 300 فٹ سے زیادہ پانی کا ایک چشمہ ہوا میں بلند ہوا۔ اسے آپ چھوٹے سے سونامی کی ایک قسم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پانی سے کہیں زیادہ مہلک اس میں موجود زہریلی گیس تھی۔ 20 سیکنڈز میں تقریباً 1.2 کیوبک کلومیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا اخراج ہوا۔
मोहलिक गैस की इस बड़ी लहर ने आसपास के करीबी देही इलाकों को फौरन अपनी लपेट में ले लिया। चंद सेकंड्स में ही करीब मौजूद देहातों के लोग और तमाम जानदार जो जिस भी हालत में थे वो मुर्दा हो गए। न्यूस गांव में 800 में से सिर्फ 6 ही लोग जिंदा बच पाए। जहरीली गैस के ये बादल दूर दूर तक फैल गए। झील से 25 किलोमीटर दूर रहने वाले अफराद भी इससे हलाक हुए। आसपास के देहातों में से जो लोग अपने घरों से ये जानने के लिए निकले कि उन्होंने ये कैसी अजीब सी आवाज़ सुनी थी, वो गैस के इन बादलों की जद में आकर वहीं अपनी दहलीज पर ही मर गए। मजमूई तौर पर 1746 अफराद इस वाक़या में हलाक हुए। कई देहातों का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। 3500 से जायद मवेशी चंद मिनटों में ही मौत की वादी में चले गए और झील बताते खुद एक साफ नीले रंग से गहरे भूरे रंग में तब्दील हो गई। लेक ऑफ डेथ। इटली के इलाके सिसिली में वाक़या ये झील अपने नाम ही की तरह ख़तरनाक है। इस झील में बहता पानी पानी नहीं बल्कि तेज़ाब है जो किसी पत्थर तक को भी गलाने की सलाहियत रखता है। अगर कोई भी चीज़ इसके पानी में गिरेगी तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। इसकी वजह इस झील में सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी है। सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि झील का पानी पानी से तेज़ाब ही बन चुका है। अगर कोई शख्स गलती से भी झील में उतर जाए तो उसका नामो निशान 1 मिनट से भी कम वक्त में मिट जाएगा। जिस जगह ये झील वाक़या है वो इलाका इतना वीरान है कि यहाँ इंसान तो क्या कोई छोटा मोटा पौधा तक नहीं उगता। यहाँ जिंदगी की अदम मौजूदगी की वजह यही सल्फ्यूरिक एसिड ही है जो इस झील के पानियों में इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है कि सादा तरीन जिसाम या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मुख्तलिफ नामुवाफिक हालात में ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं वो भी यहाँ फौरी तौर पर हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, झील का पानी तो तेज़ाब बन ही चुका है, लेकिन इसके अलावा यहाँ की आबो हवा में भी मौलिक गैसों के ख़तरनाक ज़र्रात पाए जाते हैं। यहाँ की हवा नुकसानदेह तेज़ाबी धुएं से भरी हुई है। इस फ़िज़ा में सांस लेना ख़तरे से खाली नहीं। ये जहरीली फ़िज़ा आपको बिस्तरे मर्ग पर पहुँचाने के लिए काफ़ी है। साइंसदानों का ख्याल है कि सल्फ्यूरिक एसिड ज़ेरे ज़मीन ज़राए से इस झील में दाखिल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के मुस्तकिल कुदरती ज़ख़ीरे झील के निचले हिस्से में वाक़या है। लेकिन दोस्तों, ये झील जितनी खतरनाक है इतनी ही खूबसूरत भी है। अपनी गैर मामूली खूबसूरती और रंगों के हसीन इम्तजाज से ये दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से अपनी नवीयत की वाहिद झील है जो इस कदर ख़तरनाक भी है। गर्मियों में ये खुश्क हो जाती है, लेकिन सर्दियों में आप इसके नज़ारे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन हमारा मशवरा है कि आप सिर्फ तस्वीर और वीडियोस में ही इसका नज़ारा कर लें। वहाँ जाने का ख्याल दिल में ना लाएं, क्योंकि एक तो इसके तेज़ाबी पानी और मुहलिक फ़ज़ा के ख़तरात से आपकी जान को ख़तरा होगा। दूसरा, इसके बारे में मशहूर है कि ये जराइम पेशा अफराद में बहुत मकबूल जगह है। किस्सा कुछ यूँ है दोस्तों कि सिसिली के मकामी बाशिंदे ये कहानी सुनाते हैं कि वहाँ मौजूद सिसिलियन माफिया यानी जराइम पेशा गिरोह अपने शिकार को जिन्हें वो कत्ल करते हैं यहाँ लाते हैं और उनकी डेड बॉडीज़ को इस तेज़ाबी झील में फेंक देते हैं। अभी तक इस झील ने कितनी जानें ली या कितने जिसाम को हमेशा के लिए तलफ कर दिया, ये तो सिर्फ खुदा पाक की ज़ात ही जानती है। तारीख़ में फ़िलहाल इसके कोई आदाद व शुमार नहीं मिलते। अब ये कहानी सच है या अफसाना, ये तो पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो जगह जितनी ख़तरनाक होती है उसके बारे में कहानियाँ भी उतनी ही ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। लेकिन ये 100% सच है कि इसका पानी इंसानी जिस्म को मिनटों में गिलाने की सलाहियत रखता है। मशरकी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के शहर अरूशा में झील नेट्रोन वाक़या है। ये एक नमकीन झील है जो अल्कलेन है, यानी इसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा है। ये झील ज़्यादा गहरी नहीं। नेट्रोन झील में अल्कलेन पानी का पीएच 10.5 तक है। अगर आपको अल्कलेन पानी और पीएच लेवल का नहीं पता तो आपको बताते चलें कि पीएच लेवल पानी या दीगर माया महलूल की तेज़ाबियत या अल्कलेनिटी को जांचने का एक मिकदारी पैमाना है। पीएच लेवल की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। इसमें आम पानी का नॉर्मल पीएच लेवल 7 होता है, लेकिन अगर पानी का पीएच लेवल 7 से कम होगा तो ये पानी एसिडिक यानी तेज़ाबी होगा, इसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होगी।
अगर पानी का pH लेवल 7 से ज़्यादा होगा तो ये पानी अल्कलाइन होगा। लेक लेट्रोन का ये अल्काइन वाटर इतना कॉस्टिक है कि जानवरों की जिल्द और आंखों को जला सकता है। माय क्यूरियस फेलोज, दरअसल इस झील के साथ आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं जिनका लावा इसमें गिरता रहता है और इसी लावा की वजह से इस पानी में सोडियम कार्बोनेट और दीगर मादनियात की वाफिर मिकदार पाई जाती है और इन्हीं मखसूस मादनियात की वजह से इसका रंग भी गहरा सुर्ख है। इतना सुर्ख है कि इसे देखकर ऐसे मालूम होता है जैसे कोई खून की नदी बह रही हो। दोस्तों, इस झील का पानी इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई परिंदा यहाँ पानी पीने के लिए उतरता है तो वापस दोबारा उड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि ये ख़तरनाक झील इस परिंदे को फ़ौरन पत्थर का बना देती है। ऐसा पानी में मौजूद नमक और हाई अल्कलेन pH लेवल की वजह से होता है। जब कोई परिंदा पानी को छूता है तो उसमें मौजूद मादनियात की वजह से कैल्सिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ दूसरे नाकाबिले हल कैल्शियम मरकबात के जमा होने की वजह से परिंदे के जिस्म में मौजूद टिश्यूज़ सख्त होना शुरू हो जाते हैं और यूं उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और फिर पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट की वाफिर मिकदार इस मुर्दा परिंदे के जिस्म को इसी हालत में प्रिजर्व कर देती है और देखने में यूं लगता है जैसे ये परिंदा पत्थर का हो गया हो, क्योंकि इस मरे हुए परिंदे के जिस्म का हर हिस्सा, हत्ता कि इसके पर और बाल भी अपनी ही जगह पर मौजूद रहते हैं। मौत के बाद भी इसका जिस्म गलता सड़ता नहीं है। यही सोडियम कार्बोनेट कभी मिस्री ममीफिकेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल हुआ करता था। दोस्तों, ज़रा ठहरें, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो ये कि जहाँ ये कुछ परिंदों के लिए मौत की वादी है, वहीं ये झील कुछ मखसूस जंगली हयात की एक बड़ी तादाद का मस्कन भी है। इनमें बड़ी तादाद फ्लेमिंगोज की है। वो इस झील के पानियों में घूमते फिरते रहते हैं। ये परिंदों की ही किस्म है जिनकी लंबी लंबी टांगें और लंबी गर्दन होती है। आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ ये झील कुछ परिंदों को पत्थर का बना देती है और दूसरी तरफ ये फ्लेमिंगोज का घर भी है। तो दोस्तों, वजह यह है कि फ्लेमिंगोज हाई pH लेवल बर्दाश्त करने की सलाहियत कुदरती तौर पर रखते हैं। ये तकरीबन 12 pH लेवल पर भी आराम से घूम फिर सकते हैं। 12 pH लेवल आमतौर पर घरेलू ब्लीच की ताकत के करीब है। फ्लेमिंगोज आराम से इतनी अल्कलैनिटी बर्दाश्त कर लेते हैं और इसीलिए सुकून से इस झील में घूमते फिरते हैं। और हाँ, यहाँ के पानियों में फ्लेमिंगोज की बढ़ती हुई तादाद की एक वजह यह भी है कि कोई भी यहाँ उनका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई शिकारी परिंदे तो इसके पानियों में ज़्यादा देर तक जिंदा ही नहीं रह सकते। जैसे ही वो शिकारी परिंदा इस पानी में उतरेगा, वो पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट की वजह से पत्थर का बन जाएगा। इसी वजह से ये शिकार से पाक इलाका बन चुका है। अब आपके जहन में ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या झील का ये पानी इंसानों को भी पत्थर का बना सकता है? अगर कोई शख्स इस पानी में कूदेगा तो क्या वो पत्थर का बन जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। माय क्यूरियस फेलोज, नेट्रॉन झील का इंतहाई नमकीनपन आपको फ़ौरन पत्थर का नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपकी झील में कोई कट या ज़ख्म वगैरह है तो ये पानी आपके लिए इंतहाई तकलीफ़देह साबित होगा। लेकिन अगर आप इस पानी में फिर भी ज़्यादा देर के लिए रुके तो इसका पानी का pH लेवल और 60 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारत आपकी जिल्द को जलाने की सलाहियत रखता है। आपको आंखों में और बॉडी में शदीद जलन का एहसास होगा, इसलिए ज़्यादा देर तक आप इसके पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पुरस्रार 3 झीलों की इंतहाई ख़तरनाक मालूमात? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और इस किस्म की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।